Hello students. In previous part we have started that respiration or breathing system in animals, and now in this part we will study about the respiratory system in human being. The respiratory system in human being. There are the different pathways, there are the different parts in the respiratory system, in the respiratory tract, which comparatively, collectively help in respiration, that make the respiration system in human being. In human being, there are the different parts collectively help in respiration. They are present in the pathway of human respiratory सिस्टम. ह्यूमन के रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर डिफरेंट, इस पाथवे में डिफरेंट पार्ट्स कंटेन होते हैं. ये कलेक्टिवली मिलकर के रिस्पिरेशन करने में मदद करते हैं. दोज आर द फॉलोइंग. फर्स्ट वन, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल. एक्सटर्नल nostril. Number 2, nasal chamber. Nasal chamber. Next, internal nares. Internal nares. Nasopharynx. Larynx. Trachea. Bronchi. ब्रोंकी या ब्रोंकस, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. ब्रोंकी जो होती हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड tertiary. Alveoli. Bronchioles भी हो सकते हैं. Bronchioles, bronchi to bronchioles and at last alveoli. This is the respiratory tract from outside to inside. If the exchange of gases take place from outside to inside, the gases pass through this pathway: external nostril, nasal chamber, internal nares, nasopharynx, larynx, trachea, bronchi and at last alveoli. During the inspiration, ये प्रोसेस कब होगी? जब इंस्पिरेशन कर रहा है ह्यूमन बीइंग, रिस्पायर कर रहा है, टेक फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. एक्सपिरेशन के दौरान ये पाथवे ऑपोजिट हो जाएगा. कहां से? एल्वियोली टू bronchi, bronchi to trachea, larynx, nasopharynx, internal nares, nasal chamber and external nostril. Now we will explain all of these parts briefly. First one is external nostril. External nostril. This is the anterior part of the nose. ये nose का anterior part, आगे जो दो होल हैं, this is called external nostril. These are the anterior part of the nose. They are two outside opening
of nostril. This is called external nostril. And the next one is nasal chamber. Nasal chamber. It is the nasal cavity. This is the pathway external nostril to जो फेस की बोन है यहाँ तक जो नेसल कैविटी नोज के जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड नेसल कैविटी एज वेल एज नेसल चैम्बर. दिस इज द nasal cavity in which hairs and mucus present. Fine hairs and mucus present. What is the role of hair? Hair filter the air which enters in our nostril. हेयर जो फाइन हेयर प्रेजेंट है नेसल चैम्बर के अंदर, ये क्या काम करते हैं, जैसे ही एयर हमारे नेसल चैम्बर में एंट्री करती है उसको फिल्टर करते हैं, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं. म्यूकस, इट मेक्स द एयर हॉट एंड ए हॉट एयर बिकम्स लाइट सो दैट इट कैन पास इजीली इनटू द नेसल चैम्बर थ्रू द इंटरनल नेरिस. द सेकंड वन इज नेसल चैम्बर. नेक्स्ट वन इज इंटरनल नेरिस. थर्ड वन इज इंटरनल नेरिस. These are the two, also two. ये भी दो होते हैं. पोस्टीरियर पार्ट मतलब नेसल चैम्बर से जैसे ही हमारे फेस बोन में अंदर जाके स्कल के अंदर होती है तो बोलते हैं इंटरनल नेरिस. These are also two. They are the posterior part of the nostril. ये नोज का पोस्टीरियर पार्ट कंटेंट है जिसको इंटरनल नेरिस बोलते हैं. और इंटरनल नेरिस एट लास्ट इट ओपन्स इनटू द फेरिंग्स, जिसको क्या बोलते हैं, नेसोफेरिंग्स. एंड नेक्स्ट वन इज नेसोफेरिंग्स. Internal nares open into the pharynx. This is called nasopharynx. नेसोफेरिंग्स और लेरिंग्स के बीच में एक लिड होती है, फ्लैप होता है कार्टिलेज का बना हुआ, दैट इज कॉल्ड एपिग्लोटिस. देन द नेक्स्ट पार्ट इज, यू कैन आल्सो राइट दैट नेसोफेरिंग्स आर एपिग्लोटिस. ग्लोटिस और एपिग्लोटिस. एपिग्लोटिस, a flap of cartilage is present which prevents the food particles to enter into the windpipe. तो यहाँ पर फेरिंक्स के जस्ट साइड में ही, फेरिंक्स के जस्ट नीचे लैरिंक्स और फेरिंक्स के बीच में एक फ्लैप होता है कार्टिलेज का बना हुआ. क्या काम करता है, इट प्रिवेंट द फूड पार्टिकल टू इंटर इनटू द विंड पाइप. इफ दिस फ्लैप विल रिमेन ओपन देन द फूड पार्टिकल इंटर इन विंड पाइप, दे मे कॉज इरिटेशन एंड दिस इज वेरी हार्मफुल फॉर अस. दैट इज आल्सो. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज larynx. It is also known as a sound box and a voice box. It is also known as sound or voice box.
साउंड वोकल कॉर्ड जो प्रेजेंट होती है लैरिंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है, लैरिंग्स एट लास्ट फाइनली ओपन इनटू द विंड पाइप दैट इज कॉल्ड ट्रैकिया। ट्रैकिया, it is a long cylindrical tube which is also known as windpipe. Windpipe. This long tube then open into the lungs in middle cavity या mid cavity, chest cavity कह सकते हैं, mid cavity कह सकते हैं, वहां जाके ओपन होती है जो फिफ्थ thoracic cavity बोलते हैं। Windpipe. This windpipe open into the lungs in the mid thoracic cavity। मिड thoracic cavity वो भी कौन सा चैम्बर? फिफ्थ चैम्बर के अंदर, फिफ्थ चैम्बर। बोन प्रेजेंट होती है thoracic cavity के अंदर, उसके फिफ्थ चैम्बर के अंदर जाकर के ये ट्रैकिया जो विंड पाइप है एट लास्ट फाइनली ओपन्स इनटू द लंग्स, और वहां जाके ट्यूबुल्स ब्रोंकस में चेंज हो जाती है। ब्रोंकस से वो क्या ट्यूबुल्स में चेंज हो जाएंगी, जिसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकी। ब्रोंकी। In lungs, the windpipe opens right or left? लंग्स में जाकर के विंड पाइप राइट और लेफ्ट लंग्स में अराइज हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं, जिसको क्या बोलते हैं? ये विंड पाइप है, ट्रैक है, जिसको बोलते हैं यहाँ पर प्राइमरी। ये जो विंड पाइप जो लेफ्ट और राइट में गई, इसको क्या बोलेंगे? ब्रोंकी। और ब्रोंकी कौन सी? फर्स्ट विंड पाइप जो अराइज, इसलिए बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकी। लंग्स इन tubules, those are called primary bronchi। primary bronchi और ब्रोंकस। प्राइमरी से जो आगे निकलती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी जैसे जैसे प्राइमरी, ये सेकेंडरी, सेकेंडरी से आगे निकलता है टर्शरी। प्राइमरी and then primary to secondary and finally tertiary और bronchioles इसमें ओपन होती है, ज्यादा होती है ब्रोंकियोल्स के अंदर। और ब्रोंकियोल से डक्ट अराइज होती हैं जो एल्वियोली में जाती हैं, उसको बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट। फ्रॉम ब्रोंकियोल्स द डक्ट which arises and reach to the alveoli. These ducts are called alveolar ducts. These ducts are called alveolar duct. ब्रोंकियोल से क्या? एल्वियोलर डक्ट। ये ब्रोंकियोल्स हैं, ब्रोंकियोल से जो डक्ट गई है, ये डक्ट जो है, ये डक्ट को क्या बोलेंगे? एल्वियोलर डक्ट। एंड एल्वियोलर डक्ट एट लास्ट फाइनली ओपन इनटू द alveoli. Then alveoli a fine network of tubules
which open into the balloon-like structure called alveoli. Here is the air stored. In alveoli, air is stored, and blood vessels take O2 from alveoli and release CO2 in alveoli. जब एयर इनहेल करते हैं तो एल्वेoli जाकर ऑक्सीजन स्टोर हो जाती है, इसके पास से जब ब्लड वेसल पास आउट होती है तो O2 ले जाती है, CO2 इसमें छोड़ जाती है. ड्यूरिंग एक्सहेलेशन वी एक्सहेल द CO2. दिस इज द पाथवे ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. In both the lungs there are 300 millions. There are 300 millions of alveoli present in both the lungs. Clear? Then lungs. Lungs are present in pairs in thoracic cavity. Lungs covered with a two protective layer. These protective layers are called pleural membrane. Outer membrane is attached to the ribs and inner to the lungs. There are two membranes which protect the lungs called pleura membrane or pleural membrane. The gap present between the both membrane is filled up with a fluid that is called pleural fluid. This fluid help in contraction and relaxation of the lungs during expiration and inspiration. Clear? Lungs are present in the cavity. Lungs हमारे thoracic cavity में present होती है. Cavity means इसका मतलब बीच में कोई जगह बनी हुई है. ये cavity जो होती है ribs के द्वारा बनी होती है. Outer से जाओ ventral side मतलब heart की तरफ जो sternum से जुड़ी होती है. इसका dorsal side जो है vertebral column से और partially इसका ribs से attached होता है. यानी इसका मतलब lungs covered होते हैं. Lungs covered जिसमें है ventral जो हमारी vertebral columns है उसमें. तो ये जो लंग्स है कैविटी में प्रेजेंट है. कैविटी फ्रंटल यानी वेंट्रल साइड में तो स्टर्नम से अटैच होती है. डोर्सल साइड में ये वर्टेब्रल कॉलम से और पार्शियली लेटरल जो साइड है इसका रिब्स से अटैच होती है, जिसके कारण से ये यहाँ पर ये लंग्स हमारे प्रोटेक्टेड रहते हैं. और ये है हार्ट. लंग्स के बीच में हार्ट प्रेजेंट है. तो कैविटी के अंदर हार्ट के साथ साथ लंग्स तो बोथ आर प्रेजेंट. ड्यूरिंग एक्सपिरेशन जब एक्सपिरेशन करते हैं our diaphragm shrink and during inspiration diaphragm inflate. This is the respiratory tract, respiratory system in human being and what are the structure of the lungs in human being.